فرمایا مومنین وہ ہیں جو اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اپنے عہد و پیمان کو ضائع نہیں کرتے، کسی سے عہد و پیمان کیا ہے اس کو ضائع نہیں کرتے، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک ہم الوارثون، وہی لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں، کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو لوگ جنت کے وارث بنیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صفات ہیں مومنین کے، ان صفات کو اپنے سینوں میں منہ ڈال کر کے سوچو، کیا تمہارے اندر موجود ہیں یہ؟ اللہ محفوظ رکھے، اگر ہم اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں تو ہم ان صفاتوں سے بری، یہ صفات بہت کم ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم اس سے کہیں زیادہ برائیوں کے اندر ملوث ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور سنو اس جنت نے یہ بات بیان فرمائی، جنت کے اندر خیمے بھی لگے ہوئے ہوں گے، جنت کے اندر کیا ہوں گے؟ خیمے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خیمے کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور جنت میں جو چیزیں آپ چاہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ وہاں عطا فرمائے گا، چنانچہ ایک جنتی کا دل چاہے گا اور وہ چیز اس کے سامنے فوراً حاضر ہو جائے گی۔ اپنی ایک مرضی کو دنیا کے اندر تم زندگی کھپا کر کے، زندگی گزار کر کے ایک خواہش نہیں پوری کر پاتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جب تم یہاں اللہ کے ہو کے جاؤ گے نا تو وہاں تم تمنا کرو گے اور وہ چیز تمہارے پاس آئے گی، اور وہ چیز ہوگی جن سے ان کی آنکھوں کو لذت ملے گی، اور ان کی ہر مانگ وہاں پوری کی جائے گی جو وہ طلب کریں گے اور اپنے سامنے پائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں، اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وكانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفیها ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعین وانتم فیها خالدون تلك الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون۔ سورہ زخرف آیت نمبر آپ جو ہے 71-72 سے آپ اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے میرے بندو، آج تم جنت میں آئے ہو، آج تمہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ ہی تمہیں کوئی غم ہے، نہ تم غمگین ہوگے، نہ تم خوف زدہ ہوگے۔ یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور جو فرما بردار تھے، ان سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے پاس سونے کی رکابیاں ہوں گی، پلیٹیں ہوں گی اور گلاس لائے جائیں گے، اور وہاں ان کو وہ چیزیں ملیں گی جن کو ان کا دل چاہے گا اور جن سے ان کی آنکھوں کو لذت محسوس ہوگی۔ اور اے جنت والو، تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہے۔ کس کا بدلہ ہے؟ نیک اعمال کا صلہ ہے۔ اللہ عز و جل ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ سورہ فصلت آیت نمبر 30 اور 31۔ اللہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ جن لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، میرے بھائیوں یہ کہنا ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، یہ نہیں کہ یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، یہ کہہ کر کے تھوڑی سی مصیبت، تھوڑا سا دکھ آیا، تھوڑی سی تکلیف آئی، چلو لون لے لیتے ہیں، قرضہ لون لے لیتے ہیں، ہماری بلڈنگ بن جائے گی، لون لے لیتے ہیں، سود کھا لیتے ہیں، ہمارا گھر تعمیر ہو جائے گا، ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، چوری کر لیتے ہیں۔ نہ ان الذین قالوا ربنا اللہ،
जिन्होंने कहा हमारा रब कौन है, मौत और ज़िंदगी का मालिक कौन है, मुश्किल कुशा कौन है, हाजत रवा कौन है, दुख व दर्द से तक निजात देने वाला कौन है, मर्ज से शिफा देने वाला कौन है। जिन्होंने ये बात कही सुमस्तकामू, फिर वो डट गए। बेटा तड़प रहा है, बुखार की शिद्दत से मर रहा है। कहने वाले ने कहा कि इसको फलानी मंदिर में ले जाओ या फलाने दरगाह में ले जाओ, फलाने बाबा के मजार पर ले जाओ, बाबा के मजार की खाक इसके मुंह में डाल दो, शिफा हो जाएगा। चला गया किसकी मोहब्बत में? बेटे की मोहब्बत में। जा करके बाबा से पनाह मांगी उसने, हे बाबा, हे ख्वाजा गरीब नवाज, हे पाक पटन या गौसल मदद, या फलाने या हजवेरी या अजमेरी या फलाने, तेरे दरबार में आया हूं, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ए पाक परवत, ए बाबा, हमारे बेटे को, हमारे बाबा को, हमारे बेटे को शिफा दे दे। आप गए वहां और आपके बेटे को शिफा हो गई। आपका बेटा आपको तो जरूर मिल गया सही सलामत, लेकिन आप अपने गिरेबान में मुंह डाल करके सोचें, क्या आपका वो ईमान जो जन्नत में जाने का सबब है, वो ईमान आपके दिल में है या नहीं? शैतान ने आपके बेटे को वक्ती तौर पर पनाह दे दी और शैतान ने उसे शिफा दे दी और वह शिफायाब हो गया, लेकिन शैतान ने जो काम आपसे करवाया, आपका एक कीमती चीज चोरी करके लेके गया और वो आपका ईमान था। आप मुशरिक हो गए और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा और शिर्क के अलावा जो गुनाह है जिसके लिए चाहे माफ कर दे। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। कि शिर्क करके मरोगे, जन्नत हराम है, जन्नत हराम है। हमारा बेटा तड़प रहा है, किसी कहने वाले ने कहा हमारी बीवी से आके हमारा बिस्तरा गर्म कर दे, और हमारी बीवी जाकर के उसके बिस्तरे पे सो गई। हमारी गैरत बर्दाश्त करेगी ये? हम ये कहेंगे अरे तुझे दूसरा बेटा मिल जाता, लेकिन मेरा जो हक था तेरे ऊपर, उस हक के अंदर तूने खयानत क्यों की? क्यों गई दूसरे के बिस्तरे पर? बोलो, हम छोटी सी गैरतों के मालिक हमें नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो जो सारी कायनात का खालिक मालिक व मौला रज़्ज़ाक ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है, अर्श आज़म का मालिक है, अर्श कुर्सी का और सबका मालिक है, इस अजीम सल्तनत का, चाँद और सितारे और जमीन और आसमान का, वो ये बर्दाश्त करेगा कि तुम उसी के बंदे के पास जाकर के भीख मांगो और उसी के मुर्दे के पास जाकर के उसको पुकारो, उसको आवाज दो? कैसे बर्दाश्त करेगा? और कैसे लोग हैं जिनकी समझ में ये बात नहीं आती? इस्तिकामत जब तक नहीं अख्तियार करोगे, सब कुछ हो जाए, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ किसी को शरीक न किया जाए। कट जाए, मर जाए, बेटा मर जाए, लेकिन इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह। और ये इस्तिकामत सहाबे कराम ने जाहिर की और नबी के सामने अम्मा सुमैया, अम्मार इब्न यासिर, तीनों माँ बाप और बेटे, तीनों खंभों में बंधे हुए नंगे धड़ंगे। ये जुल्म आज तक किसी ने नहीं देखा है। ये जुल्म नबी के सामने हो रहा है, नबी के सामने तीनों मादरजाद नंगे खंभों में बंधे हुए, और नबी गुजर रहे हैं, तीनों चीख रहे हैं अल्लाह के नबी दुआ कीजिए, अल्लाह के नबी बचाइए। अल्लाह के नबी ने कहा सब्रन या आले यासिर, ए आले यासिर सब्र करो, हमारी तुम्हारी मुलाकात जन्नत में होगी। अबू जहल आया खबीस, और उस अबू जहल ने अम्मा सुमैया के नंगे जिस्म पर, उनके पेट पर तीर रखा और कहा फिर जा मोहम्मद की इताअत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जा उनकी गुलामी से, तुझे हम जिंदा छोड़ देंगे। सुमैया ने क्या कहा मुझे जिंदगी प्यारी नहीं, मुझे अल्लाह का भेजा हुआ यह रसूल जो दीन लाया वो प्यारा है। कहा अगर तू उसके दीन के ऊपर अमल करेगी और उसके दीन के ऊपर डटी रहेगी, तेरा हश्र बहुत बुरा होगा। सुमैया ने क्या कहा, अबू जहल मेरे हश्र को सोचने से पहले मेरा रब तेरे साथ क्या हश्र करेगा वो सोच ले। अरे जो मैं देख रही हूं वो तू नहीं देख रहा है। और उस बदबख्त नाबकार ने उस तीर को मां के पेट में चुभोया और उसका पेट फाड़ा, और उसके दोनों टांगों को दो मुखालिफ ऊंटों के पैरों में बांधा, उसके कोहान में बांधा, और कहा अभी भी वक्त है सुमैया फिर जा। लेकिन उस बूढ़ी मां ने कहा कि यह हरगिज नहीं हो सकता है, मेरे जिस्म की बोटियां उड़ जाएं, लेकिन मैं अल्लाह के रसूल के इस लाए हुए दीन को कभी इनकार नहीं कर सकती हूं। उस खबीस ने मुखालिफ समतों में ऊंटों को
दौड़ने का हुक्म दिया। अम्मा सुमैया बीच से चिर गई, अम्मा सुमैया बीच से चिर गई, उसके होठों पर मुस्कुराहटें। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, उन्होंने इस्तिक़ामत अख्तियार की। अरे तुम एक बच्चे के मरने पर चंद टकों के ऊपर अपने ईमान का सौदा करते हो। मुसलमानों, हमारे सलफ ने, हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने नबी के साथ रहकर कितनी कितनी कुर्बानियां दी। मालूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन पर उस जालिम आराबी काफिर ने तलवार ला के रखी थी ना, और क्या कहा था? मन युनक़िज़नी मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद, मन युनक़िज़ुका मिन्नी या मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता कि आज मेरी तलवार से तुझे कौन बचा सकता है। तलवार गर्दन पर रखी हुई, गर्दन पे जरा सा दबाव पड़े, गर्दन दो टुकड़े हो जाए, गर्दन जिस्म से जुदा हो जाए, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के ऊपर लेटे हुए तने तनहा कह रहा है कौन तुझे मुझसे बचाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह, अल्लाह मुझे बचाने वाला है। अल्लाह का जुमला लफ्ज सुनते ही उस काफिर के जिस्म के अंदर कपकपाहट पड़ गई और तलवार उसके हाथ से गिर गई, और नबी ने वो तलवार उठाई और उसकी गर्दन पे रखी और कहा अब बता तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा। उस मुशरिक, उस काफिर ने क्या कहा? उसने कहा आज इस तलवार से बचाने वाला तू ही है और तेरे सिवा कोई नहीं है जो मुझे बचा सकता है। नबी ने तलवार उसकी गर्दन से उठाई, तलवार दूर फेंकी, कहा जालिम आज इस तलवार से तुझे मैं भी नहीं बचा सकता हूं, बल्कि इस तलवार से बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। यह है इस्तिकामत। ये क्या है? इस्तिकामत। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो डट जाते हैं इस कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर, उनका कुछ भी हो जाए पर अल्लाह के साथ किसी को शरीक, किसी को रोजी रसा, किसी को मुश्किल कुशा, किसी को हाजत रवा नहीं तस्वुर करते। फिर नतीजा क्या होता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उनके ऊपर नाजिल होते हैं। अल्लाह के ऐसे बंदों पर कौन उतरते हैं? फरिश्ते उतरते हैं। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ऐ अल्लाह के बंदो गम न करो, फिक्र न करो, वाबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, हम तुम्हें तुम्हारे उस जन्नत की खुशखबरियां सुनाने के लिए आए हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है। लहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया, हम तुम्हारी जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रहेंगे और आखिरत में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और वो जन्नत वो है जहां तुम्हारे दिल जो चाहेंगे तुम्हें मिलेंगे। वलकुम फीहा मा तदउन, और तुम उसमें तुम्हारे लिए जो मांगो मिलेंगे। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, ये तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी होगी जो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, ये वो जन्नत है और ये जन्नत इस बुनियाद के ऊपर हमें मिलने वाली है। और इन खैमों में जो जन्नत के खैमे होंगे उनके अंदर क्या होगा? अल्लाह तबारक तआला ने सूरह रहमान के अंदर इरशाद फरमाया कि ये जो खैमे बनाए जाएंगे इस जन्नत के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, तुम्हारी हूर बीवियां होंगी जो इसके अंदर ठहरी हुई होंगी, बैठी हुई होंगी। और अगर आपके दिलों के अंदर कोई सवाल इसके मुतालिक चुटकियां ले रहा हो कि इन खैमों की शक्ल सूरत क्या होगी, वो कैसे बने होंगे, किन किन चीज़ों से उनकी तामीर होगी और उनकी आराइश और ज़ैबाइश किस हद तक होगी, तो उसका जवाब भी हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही तरीके से हमको दिया है। और वही सही तरीके से जवाब दे सकते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, वही जन्नत को देख करके आए हैं, उसकी सैर व तफरीह करके आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर मोमिन के लिए एक खोखले मोती का खैमा होगा। मोती होगा वो खैमा, मोती होगी और वो खोखला होगा, उसके अंदर खैमा होगा जिसकी बुलंदी आसमान की तरफ 60 मील की दूरी पर होगी। इतना बुलंद खैमा होगा और चौड़ाई भी 60 मील तक होगी। 60 मील लंबा और 60 मील, ये आपका मिजरब कितने मील है? 4 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर मुरब्बा होगा। 60 मील लंबा और 60 मील चौड़ा। देख लो बुरैदा तक कितने किलोमीटर 60 मील होते हैं। बुरैदा और आगे निकल जाओ, किलोमीटर होगा बुरैदा 60, लेकिन मील इससे ज्यादा होगा। चौड़ा और लंबा और ऊंचा, इतना मिलेगा एक जन्नती को। और मोमिन के मुताल्लिकीन उसके अंदर रहेंगे, यानी मोमिन की बीवियां, उनके खदम, उनके गुलाम और उनके खादिम उसके अंदर रहेंगे। मोमिन उसका चक्कर लगाएगा और आपस में कोई किसी को नहीं देख सकेगा।
رہے جنت، اور جنت کے اندر بازار بھی لگیں گے. جنت کے اندر آپ کہیں گے جنت کے اندر بھی مارکیٹ ہوگی؟ ہاں، جنت کے اندر بازار بھی لگیں گے نبی کریم، اور وہ جنتیوں کا بازار ہوگا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. جنت کے اندر